हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। आज के लेक्चर में आपको मैं कुछ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगी। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी मैंने बाइनोमियल एंड पॉइसन ही एक्सप्लेन किया था, बट हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन। Okay, so once I repeat the formula of binomial distribution and Poisson distribution. So जैसे कि मैंने बताया था, binomial distribution में P of R, that means probability of R successes in n triads. इसका फॉर्मूला रहता है P of R equals to NCR P to the power R into Q to the power n minus R. Okay. And likewise, in Poisson distribution, formula of P of R is e to the power minus m to the power r upon r factorial. Okay, but if you have given frequency and if it is asked to fit the Poisson distribution, then what do we do? So, in that case, formula for P of R is summation f. क्योंकि आपको क्या दिया रहेगा, f की वैल्यूज गिवन रहेगी, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी, एंड आल्सो वैल्यूज ऑफ x विल बी गिवन। ओके, तो फॉर्मूला रहेगा आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का समीशन ऑफ f। एडिशनली इस फॉर्मूला में सिर्फ क्या लगेगा, समीशन ऑफ f e टू द पावर माइनस m टू द पावर r बाय r फैक्टोरियल। और जैसे कि हमने m की वैल्यू क्या देखी थी, m इक्वल्स टू np if frequency distribution is not given। but अगर आपको frequency distribution frequency अगर given है तो आपका जो mean value that means m रहेगा, so m equals to summation of fx upon summation of x। okay, so in this case this is the formula of m। so first of all आप क्या फाइंड करोगे, m फाइंड करोगे and then you find p of r। Now here I take one example of Poisson distribution if frequency is given. So question is fit a Poisson distribution for the data x equals to 0, 1, 2, 3, 4 and corresponding values of frequency are 122, 60, 15, 2 and 1. Okay, so first of all here we find value of mean। okay, so to fit Poisson distribution, first of all we find mean। so mean means m क्या रहेगा, summation fx divided by summation f। okay, and p of r का फॉर्मूला रहेगा अपना, so p of r is e to the power minus m। this is the formula of P of R। okay, now we make table। so table में columns रहेंगे, first column is x, second column is f और third column में हम लेंगे f into x। क्या लेंगे हम, f into x। so values of x क्या given है, 0, then 1, 2, 3 and 4। okay, then corresponding values of f are 122, 60, 15, 2 and then 1। अब हमें यहाँ पर लेना है f into x। ठीक है, मतलब हम x और f की जो corresponding values है उनका मल्टीप्लीकेशन लेंगे। so 0 into 122 आएगा 0, 1 into 60, then 2 into 15 is 30, 3 into 2 is 6, 4 into 1 is 4। okay, now we take their summation। तो यहाँ पर अगर आप summation लेते हैं तो summation हमें मिलेगी, so summation of x is 10, thereafter we take summation of f, so it is 200 and the summation of fx is 100। okay, इसकी समीशन कितनी आएगी, 100। ना वी फाइंड मीन, सो अपना m आएगा, m is
समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, दैट इज समीशन एफ एक्स कितनी है 100 अपॉन समीशन एफ की वैल्यू कितनी है 200, ठीक है। सो 100 अपॉन 200 कितना आएगा 0.5. ओके, नाउ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन P of r is summation of f into e to the power minus n and to the power r upon r factorial. Okay, which is equals to, अब summation f की वैल्यू रख देंगे कितनी है 200 into e to the power minus n, that is e to the power minus of n की वैल्यू कितनी है 0.5 into m to the power r, that means m की वैल्यू कितनी है, so m is again 0.5 to the power r upon r factorial. Okay, so this is our formula. Now here we fit this Poisson distribution. Poisson distribution fit करना मतलब क्या, अब हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब x की फर्स्ट वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर हम रख देंगे r की वैल्यू 0. ओके, सो फॉर x इक्वल्स टू 0 p ऑफ 0 की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर हम r को 0 से अगर रिप्लेस करते हैं तो हमें मिलेगा 200 इंटू e टू द पावर माइनस 0.5 इंटू 0.5 to the power 0 upon 0 factorial. Okay, वैसे ही for x equals to 1, for x equals to 2, for x equals to 3 and last value of x क्या है 4. Okay, so for x equals to 4, ठीक है. So likewise अगर आप P of 1 क्या आएगा 200 e to the power minus 0.5 into 0.5 to the power 1 upon 1 factorial. इसे हम बाकी भी फॉर्मूले यहाँ पर लिख देंगे. And P of 4 is 200 into e to the power minus 0.5 into 0.5 to the power 4 upon 4 factorial. Okay, and if you calculate these values, you will get, so P of 0 की वैल्यू हमें मिली है 121.34. हाँ, ये सब कैलकुलेशंस आप कैलकुलेटर पर परफॉर्म करेंगे. ओके, so second value अगर आप निकालते हैं तो it is 60.65, the next value is 15.16, then 2.52 and last value is 0.315. Okay, so this is these are theoretical frequencies. Okay, so in this way we fit the Poisson distribution if frequency is given. I hope आपको ये भी चीज समझ में आई होगी. Okay, now I take one more example. Now second example is the mean and variance of binomial distribution are 4 and 4/3 respectively. So here first value is what? Mean. ठीक है, फर्स्ट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है mean. तो मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ. और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है उस पर भी आपको फोकस करना है, बिकॉज फॉर्मूली फॉर वेरिएंस and standard deviation are different in binomial distribution and Poisson distribution. Okay, so for binomial distribution mean का फॉर्मूला होता है n into p. ठीक है, so
यहाँ पर मेंशन कर लेती हूँ मैं इन और गिवन मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 4. ओके, एंड वेरिएंस कितना दिया है 4/3 एंड वेरिएंस इज 4/3. ओके, बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सो मीन m इक्वल्स टू np, राइट, और इसकी वैल्यू कितनी है 4. एंड सेकेंडली वेरिएंस, सो वेरिएंस को ही आप सिग्मा भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, तो वेरिएंस कितना दिया है हमें 4/3 एंड इसका फॉर्मूला होता है npq, इसकी वैल्यू कितनी है 4/3. ठीक है, और हमें क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मीन्स हियर यू आर गोइंग टू फाइंड p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस प्लस अप टू सो ऑन. इसका एंड कहीं पर भी नहीं होगा. ओके, क्योंकि यहाँ पर x की सिर्फ हमें लोअर मिनिमम वैल्यू गिवन है. x स्टार्ट फ्रॉम 1 बट इट एंड्स वेयर, its ending value is not provided. Okay, that's why here I have written this so on, means there are infinitely many terms. So it is not possible to find these probabilities, right? But we know अगर मैंने इसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसे अगर मैंने 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 से अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी. तो जो टर्म मैंने यहाँ पर लिखी है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यहाँ पर मैंने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन के लिए, बट 0 के लिए हमने यहाँ पर ली हुई नहीं है. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस राइट हैंड साइड इज p ऑफ 0. ठीक है, दैट्स व्हाई वी टेक दिस प्रोबेबिलिटी एज ए 1 माइनस p ऑफ 0. ठीक है, एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ p ऑफ r इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ये पार्ट तो बाद में आएगा, बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे कि हमें मालूम है p ऑफ r क्या होता है NCR, देन p टू द पावर r, q टू द पावर n माइनस r, राइट. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ n? सो n इज नॉट प्रोवाइडेड डायरेक्टली, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टास्क इज टू फाइंड वैल्यू ऑफ n. क्या है अपना टास्क? n की वैल्यू फाइंड करना. Secondly, we need value of p as well as q. So next task is to find values of p and q. Okay, now how to find values of n, p and q with this data? तो आप देख सकते हैं हमें np की वैल्यू दी हुई है, npq की वैल्यू दी हुई है. अगर मैंने npq को अगर मैंने np से डिवाइड कर दिया तो इजीली क्या हो जाएगा? np गेट कैंसिल एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ q. ठीक है, तो इस तरह से हम ये वाला रेशियो यहाँ पर कंसीडर करेंगे एंड वी फाइंड वैल्यू ऑफ q. अगर आपको q की वैल्यू मिलती है, q की वैल्यू सपोज आपको कुछ तो भी मिली है, देन वी कैन इजीली फाइंड वैल्यू ऑफ p, क्योंकि हमें फॉर्मूला मालूम है कि p प्लस q की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? 1 होती है. तो यहां से आपको p की वैल्यू मिलेगी p इक्वल्स टू 1 माइनस q. p इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 माइनस q. जो अभी आप मीन्स यहाँ पर जो भी वैल्यू आप q की निकालेंगे उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे सो दैट वी गेट वैल्यू ऑफ p. देखते हैं क्या करना है. ओके, देयरफॉर npq अपॉन npq की वैल्यू कितनी है अपने पास? 4/3 अपॉन np की वैल्यू कितनी है? 4. सो हियर 4 गेट कैंसिल एंड वी गेट 1/3. और यहाँ पर np also गेट कैंसिल. सो हियर वी गेट q इक्वल्स टू 1/3. ओके, नाउ हम p कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर आपका p का फॉर्मूला आएगा 1 माइनस q
Now, as we know, P plus Q equals to 1. So this implies P equals to 1 minus Q. ठीक है? So this implies P equals to 1 minus Q की वैल्यू कितनी है अपनी 1/3. So due to the subtraction, you will get P equals to 2/3. ओके, तो यहाँ पर हमें Q मिल चुका है, P भी मिल चुका है, बट इट रिमेन टू फाइंड वैल्यू ऑफ N. अब N कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हमें NP की वैल्यू गिवन है. ओके, नाउ वी हैव गिवन दैट NP इक्वल्स टू 4. NP की वैल्यू कितनी है? 4. सो दिस इम्प्लाई N इक्वल्स टू, N क्या मिलेगा आपको? 4/P, which is equals to 4/P की वैल्यू कितनी है? 2/3. राइट. अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको N मिलेगा. तो ये 2/3 जो है ऊपर चला जाएगा. सो वी गेट 4 into 3/2, दैट इज 12/2. कितना आता है? 6. सो दिस इज वैल्यू ऑफ N. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें P की वैल्यू मिली है 2/3, Q is equals to 1/3 and N is equals to 6. So with respect to these values, now we find required probability. Okay. Therefore, by binomial distribution, P of R का फॉर्मूला होता है NCR P to the power R Q to the power N minus R. यहाँ पर हम P और Q की वैल्यूज रख देंगे. So हमें मिलेगा P of R इक्वल्स टू N की वैल्यू कितनी है? 6 CR. P की वैल्यू है हमारी 2/3 to the power R into Q, that is 1/3 to the power N minus R, that is 6 minus R. Okay. Now required probability is, so required probability यहाँ पर हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 1. सो P of x ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स P of 1 प्लस P of 2 प्लस P of 3 प्लस अप टू so on. Rather than finding all these terms, we find or we subtract its complement from 1. So 1 minus P of 0. That is 1 minus. अब हम यहाँ पर P of 0 निकालेंगे. P of 0 के लिए आप R को रिप्लेस कर देंगे 0 से. So 6C0 2/3 to the power 0 and 1/3 to the power 6 minus 0. ठीक है. और 2/3 to the power 0 is anything raised to 0 is always 1. Okay. And with the help of calculation, you will easily get its value. ओके तो इस तरह से देखिए ये भी एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि यहाँ पर आपको मीन और वेरिएंस की वैल्यूज गिवन थी. ओके एंड विद द हेल्प ऑफ दोस टू वैल्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑब्टेन्ड P, Q एंड N एंड देन वी हैव ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. ओके तो आई होप आपको ये भी एग्जाम्पल समझ में आया होगा. Okay, but once you go through the formulae of mean, variance as well as standard deviation for binomial distribution and Poisson distribution, अगर आपको डिफरेंस अगर समझ में आया तो आपको इजीली समझ में आएगा यहाँ पर कि कैसे सब करना है. ओके और P प्लस Q की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है. यहाँ पर हमने ये कॉम्प्लीमेंट जो है 1 से सब्ट्रैक्ट किया है. लाइकवाइज ये सब जो बेसिक थिंग्स है वो भी आपको अच्छे से समझनी है. ओके एंड लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर इज इफ द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यू बॉर्न चाइल्ड इज मेल एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज 0.6. ठीक है तो ये 0.6 वैल्यू हमने किसके लिए है? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय चाइल्ड or male child. Okay, so let small p be the probability of male child or you may say probability of boy child.
Okay, and that's why here P is equals to 0.6. It is given to us. Okay, then find the probability that in a certain family of 5 children, तो total children कितने हैं उस family में? 5 children हैं. Okay, so here we find the probability of getting 3 boys out of 5 children. Okay, so there are total 5 children. So here this 5 represent value of n. So n is equals to 5. Okay, now we find probability of getting 3 boys, right? So for this first of all we identify the type of distribution. ठीक है, तो अपने पास 2 टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड Poisson distribution. So I have already explained whenever we use binomial distribution and whenever we use Poisson distribution. So if value of n is very small as compared to p, then we use binomial distribution. So as you see here, value of n is small, it is 5. Okay, that's why here we use binomial distribution. So first of all we write the formula of binomial distribution. So here we consider this P of R as a probability. So P of R denotes probability of getting boy child in a family of 5 children. Okay, so here formula of P of R is using binomial distribution. P of R is NCR, then P to the power R, Q to the power n minus R. तो यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट कर देंगे और P की भी वैल्यू पुट कर देंगे. But what about Q? So as you already know, addition of P और Q कितनी होती है? 1 होती है. Okay, so from this P we find Q. So Q रहेगा 1 minus P, that is 1 minus 0.6. So it is 0.4. Now we substitute all the values here. So n की वैल्यू कितनी है? 5. So 5CR. Then P is 0.6 to the power R into 0.4 to the power 5 minus R. Okay, but here it is asked to find the probability of 3 boy childs. So here we find P of 3. So P of 3 रहेगा 5C3 into 0.6 to the power 3 into 0.4 to the power 5 minus 3. Okay, and we perform these calculations with the help of calcium. Okay, so its value is 0.3456. So this is the required probability. So I hope आपको probability क्या है ये सब समझ में आया होगा. So in my next video lecture I will explain normal distribution. So with this I stop my video lecture. So thank you very much.